Keep the heading better. Problems in your vectors. How many of you have done with the Hesse-Verma problems, बेटा? कोई बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कितने जने क्वेश्चंस कर रहे हैं बोलते सो? अरे सर Hesse-Verma से थोड़े बच्चे सर लास्ट के Hesse-Verma. ठीक है, चलो. So take the heading right now here. Problems on vectors. ठीक है, चलो. Alright, this first question there, बेटा. In a regular hexagon, in a regular hexagon, A, B, C, D, E, F, prove that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar is equals to 6 times of AO bar. ठीक है, अपने पास हेक्सागन है. Okay, ऐसा कुछ. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and this is your O. So in this one, we need to prove that in a regular hexagon A, B, C, D, E, F, prove that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar is equals to, this is AF. AF bar is equals to, AF bar is equals to 6 times of your AO. 6 times of your AO. ठीक है ना. पहले वेक्टर देखो बेटा, A to B ऐसा हो गया, then B to C, then C to D, then D to E, then E to F, then F to your what do you call that one? A regular hexagon. It should be taken in which direction बेटा? Opposite direction. Closing side of your vector part of relation लेना है basically. अब यहाँ पर देखो दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है. AB vector is exactly opposite to, isn't it? Minus of your DE bar. ठीक है ना बेटा? Yes. So resultant जो आ रहा basically ये हो गया resultant. Resultant should always be taken in the opposite direction. So resultant R bar is equals to, कैसे लिख सकता हूँ मैं? This one is your A to B plus of your B to C plus of your, पता है ना? A to B plus A to C दे रखा है ना? Sorry, okay, fine. So this one is your A to C. Sorry. This one is nothing but of your A to C bar plus A to D bar plus A to E bar plus of your A to F bar. अब AB bar तो AB bar लिख सकता हूँ मैं as it is plus A to C कैसे लिख सकता हूँ? देखो कोई बोल सकता है क्या? A to C मतलब ऐसा हो रहा है ना? AB plus BC लिख सकता हूँ क्या? AC Yes, bar sir. is equals to what? AB bar plus your BC bar. BC bar. Then A to D bar, A to D bar यानी यहाँ से यहाँ तक का जो आ रहा है, this one is A to D bar. So A to D bar कैसे लिख सकता हूँ मैं? कोई बोल सकता है क्या? This can be AB bar plus BC bar plus CD bar plus of your C to CD bar. ये तीन हो गए प्लस उसके बाद बचा क्या मेरे पास अभी? A to E bar. A to E bar मतलब यहाँ से यहाँ तक का. A to E bar कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखो बेटा कोई बता सकता है क्या? A to E bar is written as of your AB bar plus of your BC bar plus of your B2 bar plus of your D to E bar. लिख सकता हूँ सर? Yes, sir. Yes, sir. A to F is written as C to D और ये F और C D और दोनों exactly same direction में है ना बेटा? ये देखो A to F और C to D क्या दोनों बराबर है? So can I write that one as CD bar?
ठीक है ना, AF बार इज इक्वल्स टू व्हाट, C2D बार, लिख सकता हूँ। Yes, sir. और क्या बोला मैंने, हम लोग ने ए बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार, ए बी बार, यानी ए बी बार को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए बी बार इज इक्वल टू बार लिख सकता हूँ बेसिकली। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो इसमें से। सो दैट इज इक्वल्स टू दिस इज ए बी बार इज इक्वल्स टू, और ए एफ बार इज इक्वल्स टू मच फॉर में C2D, यानी क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर बेसिकली A2 bar is nothing but of your minus of D into E bar, पूरा लिखना पड़ता है फिर मेरे को, आप समझ के लिख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप लोग क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर ही, देखो बेटा यहाँ पर इसको, this can be written as of your what, minus of AB bar can be written as of your minus of your, Minus D. कैंसिल कर सकता हूँ क्या, देखो D चले गया, ये प्लस D है, ये माइनस D है, ठीक है ना। Yes, sir. और कुछ जा सकता है क्या, देखो ये CD है, CD भी चले गया, हाँ, और कुछ जा रहा है, हाँ, और कुछ नहीं जा रहा, जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा ना, और कुछ भी नहीं जा रहा। चलो, तो दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा, दिस विल बिकम फॉर मी राइट नाउ 3 टाइम्स ऑफ योर ए बी, कितने बार है देखो 1 2 3, बी सी कितने बार है 1 2 3, और क्या है सी डी, CD डी कितने बार है, कहीं पर है क्या सी डी, और क्या है मेरे पास सी डी है क्या कुछ, ए बी बार प्लस ऑफ योर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ऑफ योर डी बार। सी डी बार देखो कितने बार लिख सकता हूँ मैं, सी डी बार भी कैंसिल नहीं होता ना बेटा, कहाँ से होगा, 1 2 और यहाँ पर 3, ये भी कैंसिल नहीं होता, प्लस ही है ना, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज ऑल्सो प्लस, सी डी बार कैंसिल कहाँ से होगा, डी ई और डी ई चले जाएगा खाली, ठीक है ना। सो दिस वन इज 3 टाइम्स ऑफ योर ए बी बार प्लस 3 टाइम्स ऑफ योर बी सी बार प्लस डी ई और 3 times of CD. 3 टाइम्स ऑफ सी डी बार, यानी ये हो गया 3 कॉमन, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर ए बी बार प्लस ऑफ योर बी सी बार प्लस ऑफ योर सी डी बार, isn't it, that is equals to 3। A to B देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, A to B is nothing but of your A to B, B to C और C to D can be written as A to D लिख सकता हूँ, A to D बार लिख सकता हूँ। Yes. Now A to D बार कैसा हो जाएगा देखो, A to D बार सेंटर से जाएगा ना, so that is a 3 into 2 times of your, sorry ये क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 2 times A. 2 times of your AO, Yes. isn't it, फिगर देखो A to D is nothing but क्या, ये सेंटर से ही क्रॉस करेगा ना, मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा रॉन्ग डाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो डायग्राम आएगा ना A to D तो यही होगा ना, ये सेंटर ही है, so A to D is nothing but how much for me, 2 times of your AO, ठीक है ना, so A to D is nothing but how much for me, 2 times of your AO bar, यानी this one is 6 times of your AO bar, प्रूफ हो गया सभी को। Yes, sir. So in Yes, sir. exercise 1 A B C D E F E, prove that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar is equal to 6 times of your AO. That is proved right now in this given condition. Clear है सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? चलो। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। Magnitude of resultant of two vectors. Magnitude of resultant of two vectors. Two vectors P bar and Q bar is equal to magnitude is equal to magnitude of P bar. Find angle
find angle between q bar and resultant of 2p bar and q bar. अच्छा वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करो. आया? Magnitude of resultant of two vectors p bar and q bar. Magnitude of resultant of two vectors p bar and q bar is equal to magnitude of your p bar. Is equal to magnitude of your p bar. Find the angle between q and the resultant of your 2p and q. निकला? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है मेरे पास, p प्लस q, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ से लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ योर p बार प्लस ऑफ योर q बार इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ योर r बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ योर p बार. ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ माडा p बार प्लस q बार कितना बनेगा बेटा, दिस विल बिकम फॉर मी p bar, this will become for me p bar plus q bar plus 2p cube into your cos theta is equals to ये बन जाएगा p square, यानी this will become for me q plus 2p cube into your cos theta will be equal to your 0, यानी cos theta वैल्यू निकली मेरे पास कितना, माइनस ऑफ योर q बाई 2 टाइम्स ऑफ योर p. ये स्टेप समझ में आया सभी को? cos theta value is equal to how much for me, minus of your q by 2p, यानी if I am taking the two vectors right now, एक वेक्टर है मान के चलो q और इसका रिजल्टेंट जो है ना ये हो जाएगा that is nothing but of your 2p और ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट वेक्टर. तो यहाँ से यहाँ तक ये p है, ये भी यहाँ से p है, तो ये जब करने जाके 2b बनेगा, यानी ये जो रिजल्टेंट बनेगा दिस इज नथिंग बट ऑफ योर 2b बार प्लस ऑफ योर q बार. ठीक है ना, बस समझ में आए? Yes, sir. Isn't it? Cos theta की वैल्यू थीटा कहां पर हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर थीटा पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p and q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द p. तो मुझे cos थीटा की वैल्यू निकली माइनस ऑफ q. फाइंड द एंगल बिटवीन q एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q का रिजल्टेंट, यानी 2p से हम लोग को एंगल निकालना है 2p एंड एज वेल एज ऑफ योर q, यानी ये हो गया मेरे पास एक वेक्टर, ये हो गया 2p बार और ये हो गया एक वेक्टर q बार. इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगी राइट नाउ हियर दिस वन इज नथिंग बट थीटा.
और इन लोगों का जो रिजल्टेंट आएगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट. दिस इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी 2p बार प्लस ऑफ योर q बार, और ये बनेगा यहाँ पर एंगल अल्फा. तो tan अल्फा कितना होगा बताओ. tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan alpha is equals to 2p into your sin theta divided by 2p into your cos theta plus q. अल्फा वैल्यू कितनी हो रही है बताओ कोई. tan inverse 2p sin theta by 2p cos theta plus q. 2p cos theta plus q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, 0 है. isn't it? So tan alpha is equals to 2p into sin theta. यहाँ पर देखो q plus 2p into cos theta की वैल्यू कितनी है 0. Anything divided by 0 is how much for me? Infinity. अगर ये infinity है मतलब अल्फा कितना होना चाहिए 90 डिग्री. Yes. ठीक है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है. बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशानी में हो जाते हैं क्वेश्चन के लिए. सो प्लीज ट्राई टू बी लिटिल बिट अटेंटिव और एक से दो बार इसको फिर से एक बार ट्राई करो. क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करो. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा है मैंने. टू वेक्टर्स क्या क्या है पी एंड क्यू. तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार हो जाएगा. उसका एक रिजल्टेंट है विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पी बोला. प्रॉब्लम में दे रखा है उसने, तो मैंने मॉड ऑफ पी लिया. तो उसको सिंप्लीफाई किया तो cos थीटा वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ q बाई 2p. तो उसमें से मैंने ट्रायंगल लिखी. सो इट इज क्यूब एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 2p, यानी अपोजिट साइड कितना है मेरे पास 2p बार प्लस ऑफ योर q बार. उसके बाद उसने क्या पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन q बार एंड द रिजल्टेंट ऑफ योर 2p एंड q. q बार और 2p और q के बीच में रिजल्टेंट के चाहिए एंगल चाहिए. एंगल बिटवीन q बार and resultant of what? Resultant r of your what? 2p and q का resultant. देखो कितना आ रहा है राइट नाउ. इसमें से डायग्राम में से भी यहाँ ही समझ सकते हैं आप बेसिकली. q और 2p एंड q के बीच में एंगल कितनी है 90 डिग्री. यस सर. यहीं पर ही आपको खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको और क्लैरिटी के लिए मैंने डायरेक्शन लेके भी उसको प्रूव करा कि अल्फा वैल्यू 90 डिग्रीज कैसा हो रही. क्योंकि 2p और q के बीच में जो एंगल आएगी ये थीटा होगा, और ये जो रिजल्टेंट है दैट इज नथिंग बट 2p q इनटू cos थीटा पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को. Yes, tan sir. alpha is equal to 2p into sin theta by 2p plus 2p into cos theta plus q. This value is taken as 0, so alpha value is equals to 90 degrees. Clear है. Yes, sir. अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा. बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल फील होते हैं इसके अंदर बेसिकली. सो बी लिटिल. अरे और कल मैंने आप लोग को थोड़ा असाइनमेंट्स भी भेजे थे, करे क्या आप लोग. वो 40 क्वेश्चन सर. क्या बोले. Yes, sir. 40 questions. हाँ 40 क्वेश्चन कुछ Yes, डिस्कस sir. भेजे थे मैंने. यस सर करे सर. Correct. हाँ तो सॉल्यूशंस भेजे थे आप लोग को. यस सर करे सर. करे Sir, थोड़े problems. कोर्स के भी है सर. क्या बोले फोर्स करे तो निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. यस सर. Torque के कैसे निकाल? टार्क मतलब क्या. टाउ इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार. ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना. आर बार इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार. ये वैल्यू डाल के करना है बस. अच्छा ओके. फॉर्मूला याद रहना पड़ता है एक्चुअली. मैकेनिक्स में आता है अपने को, बाद में कर सकते हैं बेसिकली. लेकिन फॉर्मूला जो है ना टार्क का वो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है. ठीक है ना. चलो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बेसिकली. if two vectors two I cap plus 3j cap plus k cap and minus 4I cap minus 6j cap minus lambda k cap are parallel to each other, then value of lambda is, give the options. 0, second option is -2, third option is 3 and fourth option is 4. जल्दी से बताओ. 2, sir. 2, sir. 2. -2.
आया? यहाँ पर देखो बेटा, द कोफिशिएंट्स ऑफ I, J and K should be constant बेटा, should be constant. आया किसी को? 2 sir minus Option 2 sir, -2 answer. Very good. -2 is answer. बहुत बढ़िया. Isn't it? Should be constant ratio. पैरेलल वेक्टर मतलब यानी डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ. देखो, ax bx must be equal to ay by by must be equal to az by bz. ठीक है ना? ax की वैल्यू बताओ क्या है मेरे पास? ये ax है, 2 ay है, a by -4. so this is 2 by -4 is equals to, उसके बाद 3 by -6. -6 very good, that is equals to is it a by lambda कितना? 1 by lambda. Sir minus lambda. minus lambda. हाँ 1 by Two कहाँ आना sir. माइनस लैम्डा है ना? Yes sir. या माइनस लैम्डा. 2 आना sir answer. +2 आना sir. हाँ, तो कुछ ये दो को एक आप ये कर लो. अगर ये कर रहा हूँ मैं 3 by 6 -6 is equals to 1 by minus lambda. 3 1s are 3 2s are, ये माइनस माइनस चला गया तो लैम्डा 2 आना ना बेटा, -2 दिया है यहाँ पर. नहीं इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बेटा हम लोग, फर्स्ट और लास्ट वन को इक्वेट करो. -2 आ जाएगा Yes sir, -2 आता है. क्योंकि 2 by -4 must be equated to 1 by minus lambda. ठीक है ना? फिर भी 2 आता sir. हाँ फिर भी 2 आएगा. 2 1s are 2 2s are, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा ना बेटा, माइनस क्यों आ रहा? ऑप्शन रॉन्ग है शायद मेरे ख्याल से. ठीक है चलो, समझ में आया ना? Yes sir. चलो yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. क्या क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओ जल्दी से. At what angle should the two forces 2p and root 2p acts so that the resultant force is p root 10. बताओ जल्दी से. ऑप्शन है 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज और फोर्थ ऑप्शन है 120 डिग्रीज. At what angle should the two forces मतलब क्या? 2p and root 2p act so that the resultant force is this one. अपने पास resultant का फॉर्मूला है ना बेटा, r is equals to under root of your p square plus q square plus 2pq into cos theta. मैंने बोला था कि वेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो फोर्सेस भी हो सकते हैं यहाँ पर. तो फोर्स क्या है यहाँ पर? देखो रिजल्टेंट क्या दे रखा है, गिवन इन द प्रॉब्लम फॉर मी r is equals to root 10 times of your p, और ये दे रखा है मेरे पास 2p, और आई कैन टेक दैट वन राइट नाउ. द वेक्टर p इज इक्वल टू, सॉरी ये जो मैंने यहाँ पर ले रखा है बेसिकली, सो यहाँ पर p इज इक्वल्स टू हाउ मच ही हैज गिवन फॉर मी वर 2p and q value is equals to how much for me वर root 2 times of p. Someone is giving me the answer 45 degrees. very good. ओके ना, तो रिजल्टेंट में डालो. सो दिस विल बी इक्वल टू p into
This one is p into root 10 is equals to under root of your p की value आ गई. That means this one is 4p square plus 2p square plus this one is 4 root 2 into p square into cos theta. So this will become for me p into root 10, that is equals to under root of 4 plus 2 is nothing but 6p square plus 4 root 2 p square into your cos theta. On squaring both the sides, on squaring both the sides, on squaring both the sides, 10p square is equals to 6p square plus 4 root 2p square into your cos theta. Yani 6 if I take on this side, this will become for me 4p square is equals to 4 root 2 p square into your cos theta. P square 4 and 4 gets cancelled. So cos theta is equals to 1 by root 2. That means theta is equals to 45 degrees. This is your answer. Clear for everyone? Okay. Yes. Sir, yes. Yes, sir. Next question. If a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector 4i cap minus 4j cap. Sorry, ये रखा है मेरे पास यहाँ पर बेसिकली this is perpendicular to the vector 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap. Okay, that is a given condition. The vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap. Then value of alpha is बताओ जल्दी से. First one is -1, second one is half, third option is -1/2 and fourth option is 1. करके बताओ जल्दी से. -1/2. कितना आ रहा बेटा? -1/2. -1/2. वेरी गुड. आया? Yes, sir. -1/2. बाकी लोग आंसर्स नहीं दे रहे कौन भी. सर परपेंडिकुलर में a डॉट b 0 होता है ना. हाँ, परपेंडिकुलर में a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 0 होगा. यस. ए दे रखा है, बी दे रखा है, खाली आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया पहले. अरे मेरा पेन नहीं पढ़ रहा यार. ओह, -1/2 अब्दुल मुखीद. वेरी गुड. अरे चैट बॉक्स में तो भी आंसर दिया करो आप लोग. हाँ, बिल्कुल आइडियली बैठे तो कैसा. मुझे को करना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में. Yes, sir. तो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. थोड़ा पेन स्ट्रक हो गया मेरा.